محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ پانچواں حصہ دعوی نبوت اور ابتدائے دعوت اسلام۔ 42واں اور آخری باب، تماشا۔ جو اس دن قریش کے سرداروں نے دیکھا، مگر کیسا تماشا۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ رسول اللہ اس صحرائی کو لے کر ابو جہل کے گھر پر پہنچے۔ قریش کے جو چھوکرے ان کے پیچھے چلے آ رہے تھے، قریب ہی کھڑے ہو کر دیکھنے لگے کہ اب کیا پیش آتا ہے۔ رسول اللہ نے اس دروازے کو کھٹکھٹایا۔ ابو جہل نے اندر ہی سے آواز دی، کون ہے جو اس طرح دروازہ پیٹ رہا ہے؟ میں ہوں، محمد رسول خدا، باہر آؤ، مجھے تم سے ایک کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ عموماً اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ ضرور کہتے تھے۔ مراسلت و کتابت میں بھی لکھوایا کرتے تھے، کیونکہ یہ کلمہ بذات خود ایک اعلان و تبلیغ تھا۔ محمد، ابو جہل زیر لب بڑبڑایا، وہ یہاں کیوں آئے؟ ان کو مجھ سے کیا کام پڑ گیا؟ شاید وہ مصالحت کا ارادہ رکھتے ہوں۔ اس خیال سے وہ کچھ خوش ہو گیا کہ آخر محمد کو میرے گھر پر آنا ہی پڑا۔ چنانچہ اس نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ اس نے ایک نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ڈالی اور ایک نظر اس نے بوڑھے فریادی کو دیکھا اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اچھا، تو یہ اس بڈھے کا قرض دلانے آئے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کا روپیہ تم کیوں نہیں دیتے ہو؟ اس پرسش کے جواب میں کوئی سخت کلمہ کہنے کے لیے ابو جہل نے اپنا منہ کھولا ہی تھا کہ حیرت و دہشت کے مارے مبہوت رہ گیا۔ خوف سے اس کا سارا جسم لرزنے لگا، اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور اس کی نظریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے کچھ اوپر جم کر رہ گئیں۔ قریش کے مخبر چند قدم پر کھڑے اس کی بدلتی ہوئی حالت کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ وہ یہ تو دیکھنے کے لیے بےتاب تھے کہ ابوالحکم نکلتے ہی غیظ و غضب سے پھنکارنے اور دھاڑنے لگے گا اور دونوں کی گفتگو سن کر بس مزہ ہی آ جائے گا۔ مگر یہ کیا؟ اس کو کیا ہوا؟ انہوں نے بھی نظریں اٹھا کر اس طرف دیکھا جہاں ابو جہل کی دہشت زدہ آنکھیں جمی ہوئی تھیں، مگر وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ شہد کی دو چار مکھیاں بھنبھناتی ہوئی اڑ رہی تھیں۔ اس آدمی کا روپیہ تم کیوں نہیں دیتے؟ کیوں اس کو؟ ابو جہل نے رسول اللہ کی بات پوری نہ ہونے دی اور ہکلاتے ہوئے بڑے عاجزانہ لہجے میں اس نے کہا، ذرا مہلت دیجیے، میں اس کا روپیہ لائے دیتا ہوں۔ یہ کہا اور تیزی سے گھر میں داخل ہو گیا۔ اس کی یہ بات ان لڑکوں نے بھی سنی، مگر جب وہ اندر گیا تو ان کو خیال ہوا کہ شاید ابوالحکم نے مکر سے کام لیا ہے اور
वो अंदर से तलवार या दर्रा लेकर आएगा और गुस्ताखी के साथ तकाजा करने वालों की कब्र लेगा, क्योंकि उन्होंने आज तक अबुल हकम को किसी से इस तरह दबते हुए और आजिजाना बात करते हुए नहीं देखा था। मगर वो सख्त हैरान रह गए जबकि थोड़ी ही देर बाद अबू जहल घर से बाहर आया। उसके हाथ में रकम की थैली थी। उसने रुपया निकाल कर गिना और अपने कर्ज ख्वाह से उसके मुतालबे की तस्दीक कराई कि कितना रुपया देना है, और वो रकम उसके हाथ में रख दी और फिर रसूलुल्लाह की तरफ मुतवज्जा हुआ कि आपसे कुछ बात करे और उज़्र माजरत करे। मगर रसूलुल्लाह ने बड़े वक़ार और बेनियाजी के साथ उसकी तरफ से रुख फेर लिया और उस बूढ़े की तरफ मुतवज्जा हो गए। आओ चलें। जब इस गली से निकल आए तो रसूलुल्लाह ने बूढ़े को रुखसत करते हुए फरमाया, अब जाओ, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। कुरैश के फरस्तादा लड़के दोनों के जाने के बाद कुछ देर तक वहीं खड़े हैरत से अबू जहल को देख रहे थे, जो हाथ में रकम की थैली पकड़े खला में नजरें जमाए जेरे लब बुड़बुड़ा रहा था। जाने क्या देख रहा था और क्या कह रहा था। उसकी नजरें आहिस्ता आहिस्ता यूं उठ रही थीं जैसे वो किसी दूर होती हुई शय को देख रहा हो। उसकी ये कैफियत बस चंद लहजे ही रही, फिर उसका चेहरे का वो भयानक तनाव उतर गया और यूं चौंका जैसे किसी ख्वाब से बेदार हुआ हो। अब जो उसकी नजरें उन लड़कों पर पड़ी जो सामने दीवार से लगे खड़े थे और हैरत से इस सारे तमाशे को देख रहे थे, तो वो गुस्से से लाल भभूका हो गया। लईनो तुम्हारी मां मरे, तुम यहां खड़े क्या कर रहे हो? लौंडे सरासीमा वहां से भाग खड़े हुए जब तक दूर तक उनके कानों में गालियों की आवाज आती रही। कुरैश के सरदार उसी तरह सहने काबा में दीवार से टेक लगाए गपशप में लगे हुए थे, मगर उन्हें अपने मुखबिरों का भी इंतजार था कि वो आए तो मालूम हो कि मोहम्मद पर क्या गुजरी। वो आपस में ठठूल करते हुए कयास आराइयां कर रहे थे कि मोहम्मद ने ये कहा होगा तो अबुल हकम इस तरह बिगड़ा होगा और खूब लान तान हुई होगी। मगर ये तो वही भिन भिनाता हुआ बुढ़ा है। वो बूढ़ा सहराई था जो लांबे लांबे कदम उठाते हुए उनकी तरफ आ रहा था कि वो बहुत खुश है, जैसे उसे कोई दफीना मिल गया हो। वो आया, उसने बैतुल्लाह का तवाफ किया, आसमान की तरफ सर उठाया और अपने ही आप कुछ गुनगुनाता रहा। उसके बाद वो सरदाराने कुरैश के करीब आया और कहने लगा, क्या ही नेक मर्द था वो बंदे खुदा। तुमने ठीक ही बताया था कि वो मक्का में सबसे बड़ा सरदार है और वही हशाम के बेटे से मेरा रुपया ले सकता है। ऐ साहिबाने हरम, वो तो ऐसा बावकार और रोब वाला था कि अबुल हकम उसे देखकर ही लरजने लगा। और देखो, मुझे भी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं उसका नाम और पता पूछ लेता, मगर हाँ, उसने हशाम के दरवाजे पर अपना नाम तो बताया था, मगर मैं अपनी फिक्रों में ऐसा गुम था कि ठीक से सुन ना सका। भला सा नाम था। मुझे उस मुअज़्ज़िज़ सरदार का नाम बताओ कि मैं जाऊं तो सबको बताता हुआ जाऊं कि मक्का जाओ और बेखौफ होकर जाओ, वहां वो मेहरबान पुश्तपना मौजूद है जिसका हुक्म सब मानते हैं।
कुछ देर बाद जबकि वो बूढ़ा रुखसत हो चुका था, अबू जहल भी वहां आ पहुंचा। कुरैशियों की जब नजर उस पर पड़ी तो वो एक साथ बोल उठे, अरे अबुल हकम, तुझे क्या हो गया? तूने मोहम्मद की बात मान ली और उस बूढ़े की रकम लौटा दी। ये तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा जा रहा है? तुझे क्या मार पड़ी है? अबू जहल ने कहा, मैं नहीं जानता इस मामले में क्या कुदरत का भेद था। बस मुझे तो इतना मालूम है कि मैं जब घर से बाहर निकला तो मैंने मोहम्मद के पीछे जमीन से कुछ ऊपर कला में एक निहायत खौफनाक चेहरे वाले ऊंट को देखा। बहुत बड़ा ऊंट, जैसे धुएं से बना हुआ हो। उसने अपने बहुत बड़े से मुंह को खोल रखा था और यूं मालूम हो रहा था कि अगर मैंने मोहम्मद का हुक्म मानने से इनकार किया तो बस गर्दन बढ़ाकर मुझे निगल लेगा। मुझे तो मौत जबड़े खोले अपने सामने दिखाई दे रही थी। उसके साथी ये सुनकर सख्त हैरान हुए। ये बात नाकाबिले यकीन थी, मगर अबुल हकम जैसा मजबूत आसाब का आदमी, जिसकी हाजिर दिमागी में कोई शुबा न था, इस तरह चुपचाप तो मोहम्मद की बात मान नहीं सकता था। यकीनन उसने कोई हौलनाक सूरत देखी होगी। इतने में वो लड़के भी आ पहुंचे जिनको कुरैश ने अबू जहल के घर की तरफ भेजा था। उनको देखकर अबू जहल फिर गजबनाक हो गया और उनके पीछे दौड़ा, चुड़ैलों की औलाद, तुम वहां क्या करने आए थे? लड़के भाग खड़े हुए। अबू जहल उनके पीछे दौड़ा। इस तमाशे को देखकर सब लोग खै मारकर हंसने लगे। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला।